approach to SPS and biostatics. We'll be starting our session by Tilawat Quran Pak, for which I would like to invite Fatima Iqbal from third year SLMC. Assalamualaikum. Walaikum Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jazakallah khairan. Okay, so I would like to introduce our guest speaker for today, Dr. Hasnath. He is a final year MBBS student from CMH Kharia, head of HSC National Research Team, and he has 10 plus research publications in known in national and international journals, and he is a certified data analyst as well. So, first of all, I would like to thank you, Dr. Hasnath, for joining us and sparing your precious time to share your knowledge with us. So over to you. Am I audible to you guys right now? Yes, you are. Okay, so a little bit questions before I jump into the discussions. आप लोगों में मैंने आप लोगों को कल इसके लिंक वगैरह फॉरवर्ड किया था, तो हाउ मेनी पीपल हियर अराउंड यू जिन्होंने SPSS डाउनलोड किया हुआ है इस वक्त? जस्ट रेज योर हैंड. एक, I'm just getting to know one, two. Okay, दो लोग हैं सिर्फ. That's it. Okay, teams. I conveyed this message before time because I just wanted to make sure that when we are learning this thing, आप लोग on hand experience ये चीज सीख लो. मेरी आवाज सही आ रही है फिर कम आ रही है? नहीं, आवाज ठीक है आपको. Okay, sure. That's great. Point is that मैंने कोशिश ये की थी कि आप लोगों को पहले एक दफ़ा फाइल भी शेयर कर दूँ, एंड आई शेयर दिस सॉफ्टवेयर एज वेल कि आप लोग सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल कर लो, एंड देन उसके बाद जो है ना हम लोग इस पर ऑन हैंड एक्सपीरियंस पे करेंगे. आई विल शो यू, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या क्या करना है. लाइक यू कैन सी इट, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको आप लर्न नहीं करोगे. ठीक है, एक चीज़. सेकेंड थिंग इज के व्हाट यू गोना टू डू टुडे is the epicenter of everything that you're going to do in the research, because if you know अगर आपको research का statistics वगैरह आती हैं, and if you understand the tips and tricks of basic statistics and data analysis, तो आपका फायदा ये होगा कि you're not dependent on any people. So people will be dependent on you to go for research papers and all of that stuff, right? So that is why it's a bit of more important than understanding everything in the research program. So if I conclude this thing, that understanding research whole process from A to Z is, if we divide the whole process from A to Z, so आपका 50% to statistics or biostats or interpretation of the results and writing up the results वो matter करता है, and the rest 50% is all of that you guys learn before time and all of that. Okay,
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों को बिफोर हैंड आप लोगों को कितना नॉलेज है बेसिक स्टैट्स के टर्म्स का? शुड आई स्टार्ट फ्रॉम दैट और शुड आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द SPSS सॉफ्टवेयर एंड आई लेट यू नो गाइस के किस तरह क्या क्या करना है? ठीक है, तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करो. इट्स जस्ट कन्वर्सेशन सेशन, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन वे लेक्चर, गोइंग टू बी अ कन्वर्सेशन लेक्चर. तो आप लोग बताओ मुझे कि आप लोगों को बेसिक्स आती हैं या फिर मैं 15-20 मिनट लगाऊं उसके ऊपर, उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करूं. I'm waiting for you, for your replies. Hmm, okay. Anyone else? आप लोग chat में message कर दो if you don't want to speak up. I don't know why. That's it. Okay. Yeah. Let's get this started. मैं screen share कर रहा हूँ. Okay. सही, ठीक हो गया. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, screen is visible. Okay, great. यार ये बहुत पुरानी स्लाइड्स वगैरह हैं. Just want you to guys to know about the bits of it. आप लोगों को आइडिया है काफ़ी, there are a lot of lectures मेरी ही स्लाइड्स के ऊपर पड़े हुए हैं और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, HEC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और देयर आर फ्यू इन द यूट्यूब एज वेल. तो आप लोग वैसे डिटेल में देख लेना. बट आई वांट यू गाइस टू नो इसके आज जो काम की चीज़ें हैं वो पता हो, ताकि जब हम SPSS को यूज़ करना सीखें और जो द फन पार्ट स्टार्ट करें तो यू गाइस बेसिकली नो कि हम क्या क्या कर रहे हैं. ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स क्या क्या है. गिव मी सेकंड बाय दिस स्लाइड. तो इंट्रोडक्शन है बायोस्टैट्स का. टाइप्स ऑफ डेटा, बेसिक बायोस्टैटिक्स टर्म्स, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड बेटर. उसके बाद ये क्या है कि मेकिंग वैलिड इंटरफेरेंसेस फ्रॉम डेटा कलेक्शन थ्रू SPSS, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या है. हमारा थ्री और फोर पार्ट जो है वो आज का काम है. फर्स्ट एंड टू यू विल कैन वॉच दो वीडियोस. तो डेफिनेशन छोड़ दो. आप लोगों में से जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दोज अंडरस्टैंड इट मच बेटर. फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. बेयर विद मी. आप लोगों को वैसे भी कम्युनिटी मेडिसिन में चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए मिल जाती हैं, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे. तो स्टैटिस्टिक्स में है क्या, कलेक्शन करना है डेटा का, ऑर्गेनाइजेशन करनी है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको प्रेजेंट करना है, एंड देन उनको उनका एनालिसिस करना है, एंड देन आपने उसको डेटा को एनालिसिस को इंटरप्रेट करना. लेट मी गिव यू अ वेरी शार्प एग्जांपल. आपने डेटा कलेक्ट किया है ऑल अराउंड द क्लास. ये क्लास में जो है फॉर एग्जांपल हु इज द हु इज द हु इज, आप मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. गिव मी सेकंड. एक एग्जांपल ले लो आप अपनी क्लास में कि किस शख्स की आपकी पूरी क्लास में 170 सेंटीमीटर से हाइट ज़्यादा है. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द डाटा कलेक्शन. ओके, सो यू गोना मेजर एवरी गाय हाइट. ठीक है, और हर शख्स की आप अपनी क्लास में हाइट मेजर करोगे और वो 170 से जो ऊपर होगी आप उसको कलेक्शन में ले लोगे. ठीक है, जिसकी 170 से नीचे होगी वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू, आई सपोज दैट कि आप लोगों को आइडिया है कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, तो आप उसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू रिमूव कर लोगे. तो व्हाट यू गॉट इज दी 170 प्लस हाइट्स जिनकी भी है. ठीक है, फिर आप उन डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे कि बड़े से छोटा या असेंडिंग या डिसेंडिंग. ठीक है, बेसिक लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ. फिर दिन आप उस डाटा को प्रेजेंट करोगे इन द बार ग्राफ, इन द बार चार्ट, इन द पाई डायग्राम, जो भी आप चूज करते हो. बेसिक समझा रहा हूँ. एंड देन यू विल एनालाइज दैट थिंग कि क्या बॉयज़ की हाइट ज़्यादा है गर्ल्स से या गर्ल्स की हाइट ज़्यादा है बॉयज़. ठीक है, ये जो मैंने दो अब आपको बातें समझाई है ना कि क्या बॉयज़ की, फॉर एग्जांपल आपने डाटा प्रेजेंट कर लिया, आपने डाटा एनालाइज किया, आपके डाटा के मुताबिक ग्रुप ए का जो हाइट है वो ज़्यादा है ग्रुप बी से.
लेकिन उसका क्या मतलब है, दैट कम्स इन द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो एनालिसिस करना लाजम, एनालिसिस तो हर शख्स कर सकता है इफ यू वॉच द वीडियोस, बट एनालिसिस से आपने अपना डाटा, आपने अपना रिजल्ट निकालना है, वो इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ डाटा आप लोग कलेक्शन कर लेते हो, ठीक है, लाइक दिस इज वन ऑफ द डाटा आई कलेक्टेड बैक इन माई टाइम्स, तो इट वॉज इन फर्स्ट ईयर, तो कुछ इस तरह का डाटा दिखता है, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह डाटा कलेक्ट करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। आप उनको ऑर्गेनाइज करते हो, एडिटिंग करते हो, आप उस डाटा में से रॉ डाटा निकालते हो, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर जो आपको डाटा रिक्वायर्ड नहीं होता उसको रिमूव करते हो, जो डाटा आपको चाहिए होता है आप उसको रखते हो, ठीक है। फिर आप डाटा को क्लासीफाई करते हो, एज के लिहाज से अगर आप करना चाहते हो, आप जेंडर के लिहाज से क्लासीफाई करना चाहते हो, आप उसको अपना क्लास के लिहाज से क्लासीफाई करना चाहते हो। तो इन आवर एग्जांपल विल क्लासीफाई दिस के दिस होल डाटा वाज क्लासिफाइड इनटू टू सेट्स, वन सेट वाज फीमेल एंड वन सेट वाज मेल, ओके। देन आप उनको टेबुलेशन करते हो, आप उनको टेबल्स की फॉर्म में लिखते हो, ओके। दिस इज हाउ इट प्रेजेंट्स लुक्स लाइक, ओके। एंड देन मैं इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वी गोना जंप टू द एसपीएसएस फर्स्ट। मुझे लगा कि आप लोगों को चीज़ें पता होंगी, सो जस्ट आई एम गिविंग इट अ गो। प्रेजेंटेशन आपने, उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है डायग्राम्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब एनालिसिस की बात आती है, दैट्स द मेन पार्ट दैट यू हैव टू फोकस मोर। एनालिसिस क्या कहते हैं? सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम देख के, हमें टेबल्स अगर हमें मिल जाएं, अगर हम देखो, अगर इस तरह टेबल हमारे पास पड़े हों, आई सपोज के आप लोगों को टेबल नजर आ रहा है, राइट। आप लोगों में से कोई एक शख्स माइक अनम्यूट करके मुझे अगर गाइड करता जाएगा तो मुझे समझ आती आ जाएगी, रहा आप लोगों को पता। ओके, श्योर। तो इस तरह से आपको टेबल अगर पता चल रहा है, ठीक है, तो यू नो दैट कि दिस पर्सन, इसकी हाइट ज्यादा है इसके वेट से, ठीक है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर टू, सब्जेक्ट नंबर टू की जो हाइट है वो दैट इज लेस, इज द लीस्ट, एंड द सब्जेक्ट नंबर थ्री की हाइट जो है वो सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये जो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन मैंने की है ना, ये डाटा एनालिसिस ही है जो मेरे माइंड ने किया। लेकिन जब आप इनको कॉम्प्लेक्स डाटा के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपका माइंड नहीं कर सकता। देयर कम्स दी सॉफ्टवेयर, फिर जहाँ पे आपको अपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि आपने सिंपल ऑब्जर्वेशन करके आपने डाटा एनालाइज कर लिया, या जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी ने अगर रिसर्च की हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप रिसर्च का जो है डाटा कलेक्ट करते हो, तो आपको डाटा कलेक्शन में पता चल जाता है कि आपका डाटा किस तरफ को जा रहा है, लाइक आइदर यू आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, अदर यू हैव गोइंग टू हैव अ नेगेटिव रिजल्ट। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद आपने हाईली और सिंपली और हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इसके ऊपर अप्लाई करनी है, दैट विल गिव यू दी एनालिसिस पार्ट, वो हमने आज करना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब जब आपको पता चल गया है कि सब्जेक्ट नंबर टू की, फॉर एग्जांपल गिव मी सेकंड, अब देखो, आप जब आपको पता चल गया है कि सब्जेक्ट नंबर थ्री की हाइट सबसे ज़्यादा है, तो यू कैन टेक्निकली से दैट कि सब्जेक्ट नंबर थ्री, द हाइट ऑफ द सब्जेक्ट नंबर थ्री इज द हाइएस्ट अमंग द ऑल फोर सब्जेक्ट्स, मीनवाइल the height of subject number two is the least from the all of the four subject, right? This is the data interpretation, okay। इसी तरह जब आपने हाइट को वेट के साथ कंपेयर करना है, तब आप ये अपनी माइंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट। आपने फिर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, आपको सॉफ्टवेयर से एक रिजल्ट मिलेगा, आपने उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है इनटू अ वर्ड्स की टर्म में, कि आपने इसको बताना क्या है कि यार ये है चीज, ये है चीज, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इस रिजल्ट आपने जो लिखने होते हैं। आई सपोज कि आप लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो राइटिंग पढ़ ली है, तो आपको पता चल गया, पता होगा कि इस रिजल्ट सेक्शन कैसे लिखते हैं, ओके। सो गोइंग टू द नेक्स्ट, बेसिक टर्म्स क्या है, ये जो आप लोगों को चीज़ें पता नहीं चाहिए कि आप जब स्टैटिस्टिक्स में जंपिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट वी लाइक टू नो समथिंग। जिस तरह इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ सर्वे इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन होगी, दैट पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो इसका पॉपुलेशन सैंपल होगा, ठीक है। उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सैंपल क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सर्वे इन द मेडिकल स्टूडेंट्स इन द पाकिस्तान पॉपुलेशन, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं दैट इज दी सैंपल, राइट। उनमें एन आपका, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब पैरामीटर क्या है, अब मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डू अ सर्वे ऑन Pakistan medical students for the stress level
in them, right? जो stress level है, that is a parameter actually that you want to search it up. तो मैंने easy करके आपको समझा दिया. सैम्पलिंग, आपने सैंपल कैसे लेना है? फॉर एग्जांपल, अब जो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को कहते होंगे कॉलेज में कि हमारे ये फॉर्म फिल कर दो, ये फिल कर दो, वो कर दो, या आप जाके अगर आपने कोई ऑन ग्राउंड बेसिस पे कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे तो आप कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, उन्हें हम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट मेथड्स जिनको आप सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं जिनको आपको आने चाहिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। आज के टॉपिक में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिस स्टेशन के करीब, तो पुलिस स्टेशन के करीब जो है वहाँ पे क्या सैंपल लेना है, उसके बाद जो आप लोगों का पीपल कॉलोनी है आई गेस, उधर से आपने क्या सैंपल, उधर से आपने सैंपल लेना है। उसके बाद मेरे ख्याल से टीचर्स कॉलोनी है, वहाँ से आपने सैंपल लेना है। तो आप अपने ही सिटी में क्लस्टर्स बना लो, वहाँ से आप हर क्लस्टर से फिर स्पेसिफिकली सैंपल कलेक्ट कर लो। दैट इज अ लेमैन एग्जांपल दैट आई कैन गिव इट टू यू। तो यार डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, मैं लेमैन से समझाता हूँ। Just as the tree or the raw material from which the paper is produced, so data can be viewed as a raw material from which the information is derived or obtained. समझ आई? Data is the raw material and information is that what you derive from that data. Okay? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा, वो पट्टी भाग रही होती है ऊपर, जिसपे नंबर्स रन कर रहे होते हैं बहुत स्पीड से, दैट इज द डेटा। लेकिन आपको अगर स्टॉक मार्केट में काम करना होता है तो आपको पता चल जाएगा कि डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, डॉलर की प्राइस कम हो रही है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज यू ड्राइविंग फ्रॉम दैट डाटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपके दोज हु गाइस आर वेरी मच इनटू द स्पोर्ट्स, अगर आप फुटबॉल के स्पोर्ट्स में देखते हो या आप लोग क्रिकेट की स्पोर्ट्स में देखते हो, तो आप लोग को एक चार्ट देखते हो यार। आई डोंट नो, दे मेड मी द होस्ट एंड आई हैव टू एडमिट एवरीबॉडी इनटू द मीटिंग, दैट इज ब्रेकिंग अप द टेम्पो। ओके, सो आप लोग क्रिकेट का चार्ट देखते हो, तो उस चार्ट में क्या होता है कि यू सी द बैट्समैन, उसने कितने स्कोर किए हैं और उसने कितने विकेट्स पे आउट हुआ है और क्या क्या स्टफ हुआ है, वो सारा एक चार्ट आपके पास अवेलेबल होता है, राइट? What you derive from that chart is the information that you get. Okay, so data without the information is बकवास, कुछ भी नहीं है। तो आजकल इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को करियर एडवाइस भी ये दूंगा कि आजकल की दुनिया में जितना ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है ना, तो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है टू ड्राइव द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देयर डेटा। ओके, जैसा इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, दे हायर डेटा एनालिसिस कि हमें डेटा से एनालाइज करके हमें इंफॉर्मेशन ड्राइव करके दें कि ये डेटा क्या मायने रख रहा है हमारे लिए, कितने परसेंट यूजर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कितने परसेंट यूजर्स किन किन चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड हैं। तो ये डेटा इन्फॉर्मेशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ओके, तो यार इस चीज़ की अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो दैट इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। अगर आप लोगों को समझ आती है तो दैट इज उससे अच्छा और क्या। डेटा को आप क्वालिफाई कर लोगे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव में क्या, जिस तरह मैं कोई बेसिक एग्जांपल में देता हूँ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस ये होगा कि देखो, 1 kg ऑफ सेकेंड, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। यार ऐसी कोई वेरिएबल होता है, उसका अगर उसके उसके साथ जो मैथमेटिकल वैल्यू है, अगर उसका मायने है तो वो क्वांटिटेटिव वैल्यू में आ जाएगी। अगर तो उसके साथ उसके मैथमेटिकल मायने नहीं है तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जेंडर है, ठीक है। जेंडर अगर आप देखो तो सिंपल, आप जेंडर देखो तो जेंडर 99, सॉरी, जेंडर में मेल और फीमेल आ जाते हैं, एग्रीड। तो मेल और फीमेल, दैट्स इट। अगर आप उनको मेल को 1 कर दो और फीमेल को 2 कर दो, तो 1 और 2 ये ड्राइव नहीं करते कि 1 or 2 does not have any meaning. That is only the code that you do for that gender, okay, male or female. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करो कि height of the students in the class, या फिर आप करो score of the students in the class. For example, आपकी क्लास में एक टेस्ट होता है सिंपल सा 10 मार्क्स का, ठीक है। You get 1 out of 10, 2 out of 10, 3 out of 10, 4 out of 10. That 1, 2, 3 do have meaning. Agreed? तो वो जो 1, 2, 3 है वो मायने रखते हैं, तो that is where you classify that thing into quantitative. लेकिन अगर आप कहो कि
जेंडर एक क्वांटिटेटिव है तो वो नहीं है क्वांटिटेटिव, वो क्वालिटेटिव है, वो एक क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करूँ, तो सम पीपल आर इंट्रोवर्ट एंड सम पीपल आर एक्सट्रोवर्ट। ओके, तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर एक्चुअली क्वालिटेटिव, राइट? तो दे आर नॉट क्वांटिटेटिव। ओके, अब कहानी जो आती है वो थोड़ा एसपीएसएस में क्या, या गुड वन सही है, गुड अनकाउंटेबल क्वालिटेटिव, ठीक है। अब सुनो, अब देखो एक और बात समझाता हूँ। अब आप जब आप रिसर्च करते हो तो आपके जो असल में आपने आपको पता है, मैंने आपको कुछ देर पहले एक पैरामीटर्स के बारे में बात की थी कि जो आप चीज सर्च करना चाहते हो वो आपका पैरामीटर होता है। ओके, सो पैरामीटर इज ऑल्सो समहाउ आप लेमन टर्म में समझ लो कि वो वेरिएबल होता है। ओके, अब जब आप अपनी रिसर्च करते हो तो अगर आप कहो कि मैंने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को एनालिसिस किया और मैंने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर आपको रिजल्ट दिखा, तो पीपल डोंट लाइक दैट थिंग, राइट? वी एज ह्यूमन बीइंग वांट्स टू measure things in a mathematical figures। तो आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर लो इनटू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इंट्रोवर्ट को मैं कोड कर दूं 1 और एक्सट्रोवर्ट को मैं कोड कर दूं 2, तो एसपीएसएस जब डाटा रन करेगा तो वो 1 और 2 को एज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल रन करेगा। बट वी नो दैट 1 एंड 2 डू नॉट हैव एनी मीनिंग्स, बट 1 एंड 2 ओनली गिव अस दिस थिंग कि 1 का मतलब है इंट्रोवर्ट, 2 का मतलब है एक्सट्रोवर्ट। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? शिफ्टिंग ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल इनटू द क्वांटिटेटिव वेरिएबल, गुड वन। सो आई गेस द ओनली वन पर्सन हु इज अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपने जब भी अपनी कोई रिसर्च करनी है तो हमेशा ये कोशिश करो कि आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में रिसर्च करो। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आ गए हैं तो ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आगे कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब क्लास में जेंडर्स कितने हैं। मैं कहूँ कि 2 जेंडर्स हैं, 1 और 2, सॉरी, मेल और फीमेल, दैट इज अ डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 इज मेल, 2 इज अ फीमेल। मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह क्लास में एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में मार्क्स आए स्टूडेंट्स के। ओके, सो मार्क्स हैं आपके 1 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। ये एक डिस्क्रीट सेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मार्क्स आए 1.1, 1.111, 1.11111, तो इस तरह वो कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कैटेगोरिकल एंड नॉमिनल। मैं आपको एक छोटी सी लेमन एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह नॉमिनल है ना, उसमें आप जेंडर, रेस और हाइपरटेंसिव कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको जेंडर की जो एग्जांपल पहले दी थी वो एक मैंने आपको क्वालिटेटिव वेरिएबल की फॉर्म में दी थी। जेंडर को अगर आप कोड कर लो तो वो एक नॉमिनल कैटेगोरिकल आ जाता है। ठीक है, अगर आप उसको कोड कर लो, जिस तरह मेल को 1 कर दो, फीमेल को 2 कर दो, ठीक है, इस तरह। सेम रेस, हाइपरटेंसिव, आइदर पर्सन इज हाइपरटेंसिव और आइदर द पर्सन इज नॉन हाइपरटेंसिव। ऑर्डिनल को आप देखो, कैटेगरीज रखोगे तो देयर कैन बी ऑर्डिनल होती हैं जिनमें आप रैंकिंग कर सकते हो। जिस तरह कि इफ अ स्मोकर इज, if the person is not a smoker, if a person is light smoker, if a person is a moderate smoker, and if a person is a heavy smoker. So technically you are classifying the smokers into 1, 2, 3 and 4. Okay, so यहाँ पे आप अपना ऑर्डिनल में आप उसको आप उनको जिस तरह सबसेट्स में डिवाइड कर लो। लेकिन नॉमिनल में 1 और 2, दैट्स इट। अच्छा, इंटरवल होगा कंटिन्यूस, वही ब्लड प्रेशर, एज, डेज इन द हॉस्पिटल, ये सारा एक रैंडम है, जो एक कंटिन्यूस है, जिनका आप जो कि पूरा एक सेट ऑफ कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट होता है फिक्स्ड वैल्यूज, ये आपको पता है। इसकी एक हॉर्स रेस एग्जांपल होती है, जिस तरह डिड द हॉर्स कम इन द फर्स्ट प्लेस, यस और नो, ये है नॉमिनल। अगर तो अब यस और नो से कोई मायने नहीं रखता, यस और नो कोई मायने नहीं रखते, पीछे 1 और 0 कोई मायने नहीं रखते। ओके, लेकिन इन व्हाट पोजीशन डिड द हॉर्स फिनिश, 1, 2, 3 एंड सेकंड, ये इसका ऑर्डिनल है। और इंटरवल क्या होगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द हॉर्स टू फिनिश, 60 seconds, इट कुड बी 49 seconds, इट कुड बी 50 seconds। तो ये इंटरवल आ जाता है। ठीक है, अब डेटा को आपने प्रेजेंट कैसे करना है। यू कैन प्रेजेंट द डेटा इनटू हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट्स, यार ये स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मुझसे स्लाइड्स ले लेना, यू कैन स्टडी दैट थिंग ऑन योर ओन। ओके, ये वो सारा उसका पोर्शन है, आई ग्रैब दिस स्लाइड्स फ्रॉम समवेयर एल्स, तो ये आपको देख लेना। Okay. अब आते हैं, नाउ यू हैव कवर्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस, नाउ यू गोइंग टू गेट इनटू द डाटा एनालिसिस पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की ना सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं है। ओके, या डेसिमल्स। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और समरी मेजर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, गिव मी अ वाइट बोर्ड एंड गिव मी अ वाइट बोर्ड। मैं आपको एक सिंपल सा समझा दूंगा और फिर उसके बाद आप जो है वो मेरा वाइट बोर्ड आप लोग को नजर आ रहा है? Yes, Yes, sir. visible है। तो मैंने वीडियो ऑफ की है, आई एम जस्ट गोना ड्रॉ समथिंग फॉर यू एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, ये सारा डाटा पड़ा हुआ है, मार्क्स आपने लिए हुए हैं 1 2 3 4 5 9 10, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। फिर उसके बाद 11, सॉरी नॉट 11, 10 हाईएस्ट मार्क्स हैं, 6 5 9 0, ये फेल हो गया बेचारा, 1 ये भी फेल हो गया, 4 ये भी फेल हो गया और ये पास हो गया। तो देखो यार, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज ये कि एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरी चीज होती है आपकी कि मेजर ऑफ द वेरिएंस। अब आप लोगों में से जो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो चीज समझ आएंगे, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यू मस्ट पे अटेंशन टू दिस। ओके, देखो, आपने कोई भी चीज लोकेट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने लोकेट करनी है, आप अपने साहिवाल मेडिकल कॉलेज में हो और आप कहते हो कि वो फॉर एग्जांपल कोई भी शॉप है तो वो कितनी दूर है, तो आप अपने आपसे कोई बंदा पूछता है कि यार ये वाली शॉप जो है ये कितनी दूर है, तो आप कहोगे यार हमारे हॉस्टल से कोई 2 किलोमीटर दूर है। तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट सेट किया, राइट, आपने अपना हॉस्टल एक रेफरेंस पॉइंट सेट किया। एग्रीड। इसी तरह जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं हमने एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी वैल्यू जो सेंटर में आ रही है, या ऐसी वैल्यू जो हम सेंटर में रखते हैं, जिसकी जो हम रेफरेंस पॉइंट के रखते हैं। आप इसको रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से समझो तो बहुत आसान हो जाएगा। हम करते हैं मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, अब मीन मॉड मीडियन क्या किस तरह है, देखो, मीन होगा कि अगर मैं इन तमाम के स्कोर्स को ऐड कर लूं, तमाम के स्कोर को ऐड कर लूं, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी आप एवरेज जिस तरह निकालते हो यार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीन। तो उससे ना एक खास, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाएगा मीन का। ठीक है, मॉड क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है इस पूरे सेट ऑफ डाटा में, इस पूरे सेट ऑफ डाटा में 5 इज द मोस्ट नंबर ऑफ सेट दैट इज गोइंग टू बी दैट इज रिपीटिंग, तो 5 इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सेट। ठीक है, और अगर मीडियन कहो तो वो यही हो गया कि इधर से इतने छोड़ दो, इधर से इतने छोड़ दो, और ये इन दोनों के दरमियान का एवरेज लेके सेंटर में वैल्यू रख लो, ये मीन मॉड मीडियन है। ठीक है, अब ये क्या, अब ये तो मैंने कर लिया है, ठीक है, ये तो मैंने कर लिया कि मैंने सेंट्रल वैल्यू रख ली है कि सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, लेकिन इसका क्या मतलब है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जो चीज़ नहीं समझ आती। मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, मैं 10 स्टूडेंट्स बनाऊंगा, यस 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, सो 11 स्टूडेंट्स कर लो, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर सेंट्रल वैल्यू एज अ मीडियन, राइट। ठीक है, मीडियन ये हो गया, 5 फिगर्स यहाँ से छोड़ दो, 5 फिगर्स यहाँ से, तो कि एक ये सेंट्रल में आ जाएगी, ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, ये मैं लेमन सम्स में समझा रहा हूँ। ठीक है, और सपोज करो यही वो वैल्यू थी 5, जो कि सबसे ज्यादा स्कोर उसमें 3 दफा रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू होगी, ये तो हमें समझ आ गई, लेकिन इसका क्या मकसद है, इससे हम ये देख लेते हैं
कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर actually getting marks in this direction and how many students are getting marks in this direction. That is known as variance. कि how your data is spread out, how your data is spread out in this direction and how your data is spread out in this direction. मैं example देता हूँ. आपकी क्लास, आप लोगों के कॉलेज में कोई एक आधी क्लास होगी जो बहुत नलायक क्लास हो, ठीक है, सपोजिंगली इट्स सम रैंडम क्लास, तो उसके उनके सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो जरा इस डायरेक्शन में आते हैं, ये है 0 और ये है 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है. सो इसका मतलब आपको ये 0 कैसे पता चला है? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है. आपने आपने कहा कि इट इज -5 डायरेक्शन, -5 की डायरेक्शन में ये गया है और आपकी क्लास के मार्क्स 0 है. तो हाउ योर डाटा इज एक्चुअली प्लेस्ड अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस. ओके, सो ये हो गया. उसके बाद इसी तरह आपकी क्लास, कॉलेज में कोई क्लास है जिसमें हाईएस्ट मार्क, जो बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो 10 आउट ऑफ 10 लेते हैं, ठीक है. तो योर डाटा, हाउ योर डाटा इज प्लेस्ड इन दिस सेंट्रल टेंडेंसी, वो आपका है वेरिएंस और ये आपको बता रहा है. तो एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प्स यू टू मेजर द वेरिएंस. अब आपको ये चीज़ समझ आ गई अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी वेरिएंस के फॉर्मूलाज होंगे उसमें मीन, मॉड या मीडियन कहीं ना कहीं पे अप्लाई हो रहा होगा. एग्रीड? बात क्लियर हो गई. ओके, तो ये मैंने लेमन टर्म्स में समझा दिया. आप लोगों को अभी चीज़ें समझ आ जाएंगी. ओके, मैं अभी स्लाइड्स को सिर्फ रन करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी. तो ना स्लाइड आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है मेरी? यस सर. ओके ओके, ठीक है, डन. वेट, सो मीन, मॉड, मीडियन मैंने आपको बताया है सेंट्रल टेंडेंसीज तीनों, लेकिन वो डिफाइन करती हैं कि यार ये आप लोगों में से कोई बंदा इनको संभाल सकता है, सब लोगों को एडमिट कर सकता है, बार बार आ रहे हैं. ओके, सो मीन, मॉड, मीडियन. मीन क्या होगा? एवरेज. मीडियन द सेंट्रल वैल्यू. ओके, मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. वेरिएंस क्या है? हाउ द डाटा इज स्प्रेड आउट अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी. यही फॉर्मूला की डेफिनेशन है, यही आप लोगों को समझ आ जाएगा. देखो, सॉरी, क्या हो गया? हाँ, मीन, मॉड, मीडियन आप लोगों को मेरे ख्याल से पता है सारा कुछ, वो मैं नहीं बताऊंगा बार बार. वेरिएंस, वेरिएशन क्या, रेंज क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये वेरिएंस क्या होती है, ये है आपकी मेजर ऑफ वेरिएंस. ठीक है, अब आ गया रेंज. क्या रेंज है कि रेंज का फॉर्मूला ये होता है कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट आप माइनस कर लो, दैट इज एक्चुअली द रेंज. फॉर एग्जांपल 12 माइनस 7 इज द 5. ओके, सो इसका मतलब ये है कि द वैल्यू इज समवेयर गोइंग टू लाई बिटवीन इन द 5 डिजिट्स, राइट. ना वो 7 से पीछे जाएगी, ना वो 12 से आगे जाएगी, लेकिन वो इन 5 डिजिट्स में 8, 9, 10, 11, ठीक है, इन 5 और 12, इन 5 डिजिट्स के अंदर वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है, सारी वैल्यू. इसी तरह रेंज जो है, अगर फॉर एग्जांपल अब रेंज ये नहीं आपको बता सकती कि डाटा किस तरह पड़ा हुआ. अब फॉर एग्जांपल 7 पे एक एक फिगर आई, 8 पे एक फिगर आई, 9 पे एक फिगर आई, 10 पे एक आई, 11 पे एक आई, 12 पे एक आई. तो आपको 5 की तो डिजिट मिल गया, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि वैल्यूज या डाटा किस तरह पड़ा हुआ. सी देखो, अब गौर से देखो जरा, यहाँ पे 12 के ऊपर 3 दफा वैल्यूज आई थी, 1, 2 एंड 3. 11 पे एक आई, 10 पे एक आई, 7 पे एक आई, लेकिन रेंज आपकी 5 है. तो ये आपको ये नहीं बताती, रेंज आपको ये नहीं बताती कि डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, लेकिन रेंज आपको ये बता देती है कि डाटा किस लिमिट के दौरान ही पड़ा होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी लेस देन 7, इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर देन 12, इट्स गोइंग टू बी लाइंग इन द रेंज 5. ओके, नेक्स्ट, वेरिएंस क्या है? ये आप फॉर्मूलाज देख लो, मैं समझाना चाहूँ तो बहुत मुश्किल टाइम लग जाएगा. ठीक है, दिस x1 इज x कुड बी एनी नंबर माइनस x बार. दिस इज द मीन वैल्यू, और उसका स्क्वायर ले लो, और ये जो सिग्मा है दैट इज द समेशन ऑफ एवरी वैल्यू ऑफ दिस थिंग. n इज द टोटल नंबर. i जो एओटा है, यहाँ पे एओटा नहीं शो करता, ये i शो करता है कि फॉर एग्जाम्पल i कुड बी एनी नंबर. ठीक है, और ये है आपका वेरिएंस है. ठीक है, और अगर आपने पॉपुलेशन वेरिएंस करना है तो आपने n, मैंने आपको बताया था n-1 होगा सैंपल वेरिएशन के लिए, और n कैपिटल N होगा फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस के. ठीक है, ये है ये आपके मीन होता है. मैंने आपको बताया था कि मीन फाइंड करोगे तो आप वेरिएंस पे आओ. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, आप उसको अंडर रूट ले लो. ठीक है, वही उसका अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
वही आपका हो जाएगा कितने स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है हाउ योर डेटा इज डेविएटेड, हाउ योर डेटा इज अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले मैं आपको ये ग्राफ अंडरस्टैंड करना सिखाता हूँ। ये ग्राफ है क्या? इट्स अ सिंपल बेल कर्व ग्राफ। आप लोगों में से जो जो भी फाइनल ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज सिंपल बेल कर्व डायग्राम। ठीक है, अब देखो क्या इसका ऊपर जाना, ठीक है, और इसका नीचे आना, ये क्या डिफाइन करता है? ये आपका डिफाइन करता है कि द मोस्ट ऑफ द पीपल और द मोस्ट ऑफ द डाटा एंट्रीज वर हियर अराउंड दिस प्लेस। एग्रीड? अगर आप ये चीज भी यहाँ से समझ कर चलते हो आगे तो आप लोगों की चीजें आसान हो जाएंगी। और जिस तरह ग्राफ डाउन होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डाटा एंट्रीज आर गेटिंग लेस। मतलब यहाँ पे कम डाटा है, यहाँ पे कम डाटा है, यहाँ पे कम डाटा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम। ओके, लेट मी गिव यू अ लेमन एग्जांपल जिससे आपको ये चीज समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो कि ये है आपकी हाइट 175। वॉइस की मैक्सिमम इतनी होती है, 175 हाइट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाइट आप मेजर कर रहे हो, यहाँ पे आप हाइट मेजर कर रहे हो 190 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो लोएस्ट है वो आप मेजर कर लो 160। अब देखो, आप क्लास में 160 वाले हाइट के स्टूडेंट्स भी कम होंगे, राइट? तो डाटा भी वहाँ पे कम है। अब क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे 175 की अराउंड अबाउट होंगे, वो है यहाँ पे हाइट। तो आपका एंट्रीज भी ज़्यादा है, बेल कर्व ऊपर चले जाता है। क्लास में 190 के ऊपर 1 या 2 स्टूडेंट्स होंगे, वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, डन हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? इसका मतलब ये है कि these 190 and these 160 are the exception people, right? These are the people that who are exceptions, जो कि साइड, बिल्कुल डाटा के बिल्कुल साइड पे। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि यू हैव टू गेस, अब मैं थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट करने लगा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती है तो यू जस्ट लेट मी नो, ओके? अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है, गिव मी सेकेंड। आपको मैं कहूँ कि क्लोज योर आईज एंड गेस कि एक नया स्टूडेंट आपकी क्लास में आने वाला है, उसकी हाइट क्या होगी? आप लोगों में से कोई बंदा गेस करके बता सकता है? क्लोज टू द मीन होगी या फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके भी क्लोज हो। यस, दैट व्हाई व्हाट इज एक्चुअली दैट मीन? अब बाकियों को मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये बेल कर्व डायग्राम ये बताती है कि द मैक्सिमम थिंग्स आर फॉलिंग अराउंड इन दिस प्लेस। ओके, तो अगर कोई नया स्टूडेंट आपकी क्लास में आता है तो उसके चांसेस यही होंगे कि वो 175 पे आए। दे आर वेरी लेस चांसेस कि वो बंदा यहाँ पे आए या वो बंदा यहाँ पे आए। एग्रीड? हम इसको, इस बेल चार्ट को डिवाइड कर लेते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। वन स्टैंडर्ड डेविएशन ये नेगेटिव में चलेगी, ये पॉजिटिव में। ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो फिर तीसरी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जो बिल्कुल ही बाहर चले जाती है। ठीक है, ओके। तो अब जो आपने मुझे, एक आप में से एक शख्स ने ये बताया कि इफ यू हैव टू गेस के एक शख्स, द पीपल पर्सन दैट इज कमिंग इनटू योर क्लास, उसकी हाइट की जो चांसेस होंगे वो होंगे कि वो स्टैंडर्ड इधर लाई करे अराउंड द मीन। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट डज दिस मीन इन द टर्म्स ऑफ योर रिसर्च? इसका मतलब ये है कि इफ यू नो दी बेसिक्स, कि आपने एक अपना हाइपोथेसिस जनरेट किया है कि ये एक आपका हाइपोथेसिस होगा। लेट मी रेज दैट पॉइंट। ठीक है, लेट मी इरेज दैट ऑल ऑफ दिस। ये इससे लेमन टर्म्स में अगर आपको कोई चीज समझ आ जाती है तो कोई बता दे तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि पीपल आर वेरी लाइक नहीं समझ आती है इन चीज़ों की। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे चीज़ को लेके जा रहा हूँ और वो चीज़ आसान कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने आपसे ये बोला कि कोई एक लड़का आपकी क्लास में आ रहा है नया। ठीक है, यू हैव टू इमेजिन कि आपकी क्लास में कोई एक नया लड़का आ रहा है कि उसकी हाइट कितनी होगी। आइदर ही इज गोइंग टू लाई हेयर, आइदर ही इज गोइंग टू लाई हेयर, और आइदर इज गोइंग टू लाई हेयर। तो आपने कहा कि मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो शख्स यहाँ पे लाई करे। ठीक है, वाई एंड हाउ डू यू गेस्ट इट? बिकॉज यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चा आपकी क्लास में से आए
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में 100 नया बच्चा आए, ठीक है, तो उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पे लाइक है। डज दैट मीन कि एनी न्यू इवेंट और एनी न्यू स्टूडेंट दैट इज कमिंग टू योर क्लास, इसकी हाइट इसके अराउंड इस सेंट्रल वैल्यू के करीब होगी। नाउ कमिंग टू द दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू थिंग, आपने यही चीज हाइपोथेसिस में अपने ड्राइव कर, okay? when you are going to टेस्ट योर हाइपोथेसिस, तो आपका अगर आपका रिजल्ट अगर इस जगह पे आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये कि ही इज दैट रिजल्ट इज नॉट फॉलोइंग दी मेजर रिजल्ट्स, मेजर वैल्यूज, वो यहाँ पे लाई करता है तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाता है। अगर वो यहाँ पे लाई करे तभी हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, अगर वो यहाँ पे लाई करे तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने हाइपोथेसिस ऑलरेडी जनरेट किया था कि फलां चीज के होने से, धूप के ज्यादा होने से आइसक्रीम पिघलती है। ओके, मैंने एक इवेंट देखा, और अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अब मैं अगर कोई शख्स अभी धूप में जाए और आइसक्रीम लेके जाए तो आइसक्रीम पिघलेगी? आप लोग कहोगे ऑब्वियसली पिघलेगी, क्योंकि दैट इज गोइंग टू लाई हेयर, राइट। लेकिन व्हाट इफ दैट आइसक्रीम इज फ्रॉम बास्किन रॉबिन्स, ठीक है, वो तो इतनी सख्त होती है, वो नहीं पिघलेगी। तो दैट मीन्स कि हर आइसक्रीम जो है वो धूप में नहीं पिघलती है। देर आर फ्यू आइसक्रीम जो थोड़ा टाइम लेती है, वो यहाँ पे आ जाएगी एक्सेप्शन पे, राइट। तो इसका मतलब ये कि दैट इज अ सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये एक हाइपोथेसिस का रिजल्ट टेस्टिंग होती है। मैंने लेमन टर्म्स में समझाई है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। So moving on to the next thing. Okay. वो चैट देखने दो कि आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं। हाँ, या ओके। तो मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, वो है कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन करनी है। ये वो इंटरप्रिटेशन होती है जो लोगों को नहीं आती है। आप लोगों ने एक डाटा मेजर किया या सेकंड लम्बी चार्जर। तो आपका माइक ऑफ है। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो एक डाटा ए है, 18 पे एक आई है, 1 पे एक आई है, ठीक है। ये टेस्ट स्कोर्स है, आपने मीन निकाला, आपका मीन वैल्यू आई 15.5, आपकी मीन वैल्यू आ गई 15.5, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.3, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देखो, आपकी मीन वैल्यू 15.5 है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बता रही है? स्टॉप डूइंग दिस। ओके, तो 15.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपकी 9.9। आप लोगों ने खुद गेस करके बताना ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, देखो, ठीक है। अब मीन वैल्यू सेम है वही, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी 4.5। इसका मतलब जब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होती है, यू मस्ट नो दैट योर डाटा इज लाइंग ऑन द एक्सट्रीम्स, योर डाटा इज लाइंग ऑन द एक्सट्रीम्स। इसका मतलब वो एक्सेप्शंस पे, आपकी क्लास में या तो बहुत ही नल्ले बैठे हुए हैं या आपकी क्लास में बहुत ही लाइक स्टूडेंट्स बैठे हैं। जब स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल ही 0.0095 के करीब है, इसका मतलब ये है कि योर क्लास इज एन एवरेज। इस सारी क्लास के तकरीबन 15.5 मार्क्स ही आए हैं। ये चीज़ है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी। अगर आपकी ये 3.3 एग्जाम्पल, अभी मैं आपको उसमें क्या एग्जाम्पल दूँ, ये हाईएस्ट थी, ये लोएस्ट था स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हाईएस्ट है, ये उसका मिड होगा, तो आपका डाटा इवनली स्प्रेड है, तकरीबन तकरीबन इवनली स्प्रेड। ठीक है, गेटिंग इट? जहाँ तक बात समझ आई, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही आपका डाटा सेंट्रल टेंडेंसी से दूर होता जाएगा। ओके, अब जो चीज सेंट्रल टेंडेंसी से दूर होती जाएगी वो एक्सेप्शंस में आना शुरू हो जाएगी। एग्रीड? गुड। ओके, मेरा सारा टाइम इसमें लग जाएगा तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा आगे। ओके, सेकंड, आई नीड टू एडमिट सम पीपल इन द मीटिंग।
अच्छा, अब आगे आ जाओ। यार लेफ्ट स्क्यूडनेस एंड राइट स्क्यूडनेस है, ये आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर लोगे। आई एम नॉट गोना यूज योर टाइम ओवर हियर, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये मैंने आपको चीज सिखा दी है अभी अभी ऊपर, जो पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो बेल कर्व डायग्राम से मैंने आपको सिखाई, ठीक है। तो यू नो दैट। आगे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी और चांस, वही प्रोबेबिलिटी है कि कोई चीज़ कहाँ पे लाई करती है, कोई चीज़ कहाँ पे लाई नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ही पोर्शन रह गया था, वो ये है, ठीक है। अब वेन एवर यू आर गोइंग टू गो फॉर एनालिसिस और एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, आपने हमेशा ये देखना है कि वन ऑफ द थिंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन ऑफ द थिंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ओके। अब आपने अपने वेरिएबल्स का अगर आपको पता होगा तो आप अपने जो टेस्ट्स वगैरह हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह अगर क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल वेरिएबल है और अगर यहाँ पे भी क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू वेरिएबल्स, तो आपका जो टेस्ट आ सकता है वो काई स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। और अगर आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है और एक क्वालिटेटिव है और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव है, तो आप टी टेस्ट लगा सकते हो, इनोवा टेस्ट लगा सकते हो, लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हो। इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है कि कौन सा टेस्ट किस वक्त करना है। इसी तरह अगर एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और दूसरा क्वालिटेटिव वेरिएबल है, बट डिपेंडेंसी है कि एक डिपेंडेंट कर रहा है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप उसमें ये डिफरेंस कर लोगे। इफ़ यू नो दिस थिंग, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो तो इस वे मोर इजी। अगर बाद में समझना है तो ये बाद में खुद समझ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। I'm gonna wait for 2 or 3 seconds more. Okay, so let's jump on to SPSS. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। आप लोगों को मैंने एक फाइल सेंड की थी, ठीक है। फाइल में मैंने आप लोगों को चीज़ें ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन की हुई थी, ठीक है। तो पहले बेसिक्स बेसिक्स उस फाइल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा देता हूँ आपको, क्या है क्या वो चीज़, देन यू विल गोना जंप ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, देयर आर टू व्यूज, ठीक है। वन इज अ डेटा व्यू एंड वन इज द वेरिएबल व्यू। यहाँ पे आप अपना वेरिएबल सेट करते हो एंड यहाँ पे आप उसका डेटा एंटर करते हो। मोस्ट ऑफ यू गाइज डू गेट द डाटा इन द एक्सेल फॉर्म। आप गूगल फॉर्म्स पे डाटा लेते हो और आपके पास एक्सेल शीट में आता है, CSV फाइल में आता है, ठीक है। फाइल का आगे होता है नेम और आगे डॉट CSV फाइल होती है, ठीक है। तो आप उस पूरी की पूरी CSV फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हो बाय जस्ट ड्रैगिंग ऑल ऑफ दोज इंपॉर्टेंट डाटा एंड थ्रोइंग देम इनटू हियर। वो यहाँ पे डाटा जो है आपका थ्रो डाउन हो जाता है। नाउ जो जो चीज़ पहले मैं फोकस करवाऊंगा उनकी तरफ देखना, मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बाद में भी ऐड की जस्ट टू गिव यू सम अदर थिंग्स, वो बात की बात है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, whenever you're going to close this sheet, it's going to store two files. One file is a data file. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये आपको एक फाइल देगा। ये एक इसकी होगी एक डाटा फाइल और एक इसकी होगी आउटपुट फाइल। यू हैव टू स्टोर बोथ ऑफ दोज फाइल्स। अगर आपने अपनी आउटपुट फाइल डिलीट कर दी तो आपने जितना भी काम किया हुआ होगा आपको वो नहीं समझ आएगा, वो आपका नहीं नहीं होगा, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, ओके। सेकंड, इफ यू डिलीट दिस मेजर फाइल, अगर आपकी अपनी एक मेजर फाइल डिलीट हो जाती है जिस तरह की एक ये वाली फाइल है, तो आप अपना मेजर डाटा ही लूज कर लोगे। आपकी आउटपुट फाइल पड़ी होगी और आप अपना मेजर डाटा डिलीट कर दोगे, ओके। सो अब आपकी डाटा फाइल के अंदर ये दो दो शीट्स हैं, डाटा व्यू शीट एंड वेरिएबल व्यू शीट। और आप जब इसको सेव करना है तो आपकी दोनों शीट्स सेव होंगी। एक आपकी शीट सेव होगी आउटपुट की नाम से और एक आपकी शीट सेव होगी दिस डाटा फाइल की नाम से, ठीक है। अच्छा, बिफोर जंपिंग ऑन टू द मेन पार्ट, यू हैव टू हैव यू अगर आप ये कर लो तो ठीक है, आप अपनी एक बनाओ सिंटेक्स फाइल, ठीक है। अब आप एक अपनी सिंटेक्स फाइल बनाओगे। देखो ये फाइल्स के नाम से सेव होता है, डाटा फाइल,
आउटपुट फाइल। नॉर्मली अगर आप रन अपने आप को अपनी शीट्स को टर्न ऑफ करो तो एक आपकी फाइल सेव करेगा डेटा फाइल और एक आपकी सेव करेगा आउटपुट फाइल। बट इफ यू मेक अ सिंटेक्स फाइल तो अब क्या होता है, आप लोगों में से जब आप कभी कोई काम करते हो तो आप आपने कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स काम करना होता है, तो व्हाट डू यू डू इज कि आप लोग अपना कोई रिकॉर्ड रख लेते हो जिससे आप लेजर होता है, ठीक है। आपने ये काम किया, फिर आपने ये काम किया, फिर आपने ये काम किया, फिर आपने ये काम। इस सिंटेक्स फाइल में वो उसी तरह चीजें सेव हो जाती हैं। जब आपने एक मल्टीपल डाटा के ऊपर डाटा रन करना होता है या आपने अपना एनालिसिस करना होता है, तो आपके पास अगर रिकॉर्ड हो कि आपने पहले क्या किया था, अब आप क्या कर रहे हो, तो आपके लिए सिंटेक्स फाइल का होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, अगर आपके पास आप एक शख्स नहीं हो, आप 5-6 लोग हो, आपने पहला आपने अपना पोर्शन डाटा का कर लिया, अब अगले बंदे ने करना है। अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आपने कितना एनालिसिस कर लिया और कितना रहता है? तो अगर आप उसको अपनी सिंटेक्स फाइल भी शेयर करोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। जब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा तो समझ आ जाएगी। देखो, ये थोड़ा कोडिंग टाइप सा है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टार ए गाइस, ओके, फॉर एग्जांपल ए यू आई, यहाँ तक वो जो बात आप स्टैटिक्स में लगाओगे ना, वो चीज़ ये कोड नहीं करेगा, ठीक है। उसका मतलब ये है कि ये आप मैनुअली कन्वर्सेशन कर रहे हो। आप कहोगे कि आई एम, फॉर एग्जांपल, आई एम स्टार्टिंग द एनालिसिस। अगर आप टीम में काम कर रहे हो, मेंबर टू, ठीक है, मेंबर टू प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर माय एनालिसिस। अब ये मैंने उसको मैसेज लिख के सेव कर लिया, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट ऑन, जो भी मैं काम करूंगा वो मैं यहाँ पे सेव करता जाऊंगा। इसको कर दो नीचे डाल, ठीक हो गया। अब आपने आना है कि व्हाट आर दी वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द डेटा। यहाँ पे आप सेट करोगे वेरिएबल्स अपने, जो मैंने आपका पहला वेरिएबल सेट किया हुआ है जेंडर, ठीक है। नाउ लेट मी डू दैट अगेन। जेंडर कभी भी, जेंडर अगर आपने पहला वेरिएबल सेट करना, ठीक है, ENDDER, आप कभी भी इसमें स्पेस दोगे ना, अगर आप इसमें एक स्पेस दे दोगे, देखो मैंने एक स्पेस दी है, मैंने 2 दे दिए स्पेस, इट्स नॉट गोना सेव दैट, ठीक है। तो आपने हमेशा ये करना है कि इस जेंड नेम के अंदर कभी भी कोई स्पेस नहीं होगी। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई मोर, आप अंडरस्कोर दे दो या आप बार स्कोर दे दो, कुछ भी दे दो, आप उसको कोई भी सेव कर लो। मैं इसको यूं कर लेता हूँ जेंडर 1, ठीक है, बस बताने के लिए आपको बताया, ठीक है। डन हो गया। यहाँ पे आपने उसको एक पहला वेरिएबल एंटर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिखा देता हूँ 1, ठीक है। ये मैंने स्पेस दे दिया था बीच में, सॉरी। ठीक हो गया। अब गिव मी सेकंड, मैंने स्पेस तो नहीं दिया, डन। नो नो नो, I'm giving you space again. देखो अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल एंटर होगा। व्हेन यू व्यू इट ऑन द डाटा फाइल, वो यहाँ पे डॉट 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 शो कर देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं, ओके। तो हमने तो बनाया हुआ है, तो हमने कोई ये रखना नहीं, हमने इसको करना है क्लियर। वी डोंट हैव दिस थिंग, कमिंग ऑन दिस थिंग। अब मैंने इसको बनाया था 1 2 के नाम से, ठीक है। देखो 1, इसको मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने रखा यहाँ पे मेल, मैंने रखा यहाँ पे फीमेल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको क्वालिटेटिव डाटा बता दिया। यहाँ पे भी स्पेस नहीं आएगी, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे भी स्पेस नहीं आएगी। इतना स्पेलिंग भी गलत है इसमें, स्पेलिंग गलत है, ओके चलो। तो यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं आएगी, ओके। अब आप जाओगे डाटा वेरिएबल व्यू पे, आप इसको करोगे जेंडर 1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको देखना है, यहाँ पे मैं इसको करूंगा वैल्यूज असाइन कर दूंगा। वैल्यूज वाले पोर्शन पे आप करते हो 1 1 लिखो, और 1 को आप कोड कर दो कि इट्स गोइंग टू बी मेल, ठीक है। और 2 को आप कोड कर दो इट्स गोइंग टू बी अ फीमेल, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखा तो वो गलत स्पेलिंग एक्सेप्ट कर, ठीक है। तो आप ऐड करते जाओगे, बाद में ओके कर दोगे। तो आप इसे ओके कर दोगे तो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इज कि आपका जो डाटा है वो यूं शो होना शुरू हो जाए। आपका सारे का सारा मेल और फीमेल वाला जो पोर्शन है वो यूं शो होना शुरू हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू
गेट दैट थिंग इनटू 1 और 2 फॉर्म, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाटा कोडिंग की फॉर्म में आ जाए। नाउ एसपीएस इज गोइंग टू कोड दिस थिंग। एसपीएस जो है वो इसको एज अ 1 2 के लिहाज से ही लेगा, बट सिंस आपने इसको न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं रखना, आपने इसको रखना है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब ये है कि इस वेरिएबल के पीछे जो आपने कोड किया है उस कोड का कोई मायने नहीं है मैथमेटिकली, वो सिर्फ आपने कोडिंग के लिए दिया हुआ है कि 1 और 2, दैट्स इट। यहां तक समझ आ गई गाइस? ओके, सो जेंडर, आपने वेरिएबल का नाम रख दिया स्ट्रिंग। आप वैसे नॉर्मली जो भी मैथमेटिकल वेरिएबल होगा उसे न्यूमेरिक कर दो, ठीक है। मैंने उसको स्ट्रिंग ही रखना है क्योंकि मेरा जेंडर एज अ जेंडर ही रहेगा। आई डोंट वांट टू इंटरप्रेट इट एज अ 1 और 2, ठीक है, एज अ मैथमेटिकल फिगर नहीं रखना चाहता हूँ। ओके, सो विड्थ क्या होगी, ये आप उसका लेंथ होती है कि कितने डिजिट्स आ सकते हैं, कितने डिजिट्स नहीं आ सकते हैं, फॉरगेट इट। डेसिमल, अब देखो यहाँ पे मैंने डेसिमल अभी किया हुआ है 0, मैं इसको डेसिमल अगर 1 कर दूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल आगे देखो, स्कोर में मैंने डेसिमल 2 किया हुआ है। अब आप डाटा व्यू में आओ, स्कोर में देखो पॉइंट के बाद 2 0 लगे हैं, ठीक है। अब अगर मैं वेरिएबल व्यू में जाऊं और मैं स्कोरिंग की वैल्यू को 0 कर दूं, तो आप देखना डाटा व्यू में वो स्कोर डेसिमल उड़ जाएगा और वो आगे डेसिमल से फर्दर पॉइंट्स जितने भी हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। ओके, डन। नेक्स्ट गोइंग टू इज दिस लेबल। अब लेबल में आप स्पेस भी दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप इसमें अपने अपने लिहाज से नाम लिख सकते हो कि आप देखो मैंने आपके लिए मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि यू कैन मेंशन द नेम्स ऑफ दैट वेरिएबल इन द लॉन्ग फॉर्म। जो आप अपने माइंड के लिए रखना है कि उसको आप लेबल कर सकते हो, उसमें कोई जरूरत नहीं होती, एसपीएस इसको कोई रीड नहीं करता है, ठीक है। वैल्यूज आपने कोडिंग यहाँ पे कर दी है खुद, मिसिंग वैल्यूज जो भी होंगी वो आपको वैसे पता चल जाएंगी यहाँ पे, वो वैसे ही आपको डेटा व्यू में पता चल जाएंगी जो कि डॉट के फॉर्म से आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिसिंग वैल्यू को बताना चाहते हो तो आप कोड करोगे, आप बताओगे कि कौन सी को मिसिंग वैल्यू है, उसको आपने अल्फा कर देना है, जो भी मिसिंग वैल्यू है आपने उसको 1 रीड करना है, जो भी मिसिंग वैल्यू है आपने उसको 2 रीड करना है, तो दैट सॉफ्टवेयर उसको ऐसा रीड करे, ठीक है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आता है आपका दिस थिंग कि आपने आपका वेरिएबल को, आपने उस वेरिएबल को कैसे रीड करवाना है। either you want to read that variable as a nominal or either you want to read that variable as a ordinal। सिंस हमारा ये नॉमिनल वेरिएबल होगा, ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि आप इसको फर्दर सेट में डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स यस और नो, इट्स मेल और फीमेल, ठीक है। अगर आप इसको अब नेक्स्ट वेरिएबल देखते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल मैंने बनाया था स्कोर 1, ठीक है। एक बच्चा आपकी क्लास में, स्टूडेंट्स में, उन्होंने पहला टेस्ट लिया और उनके ये स्कोरिंग आया। यहाँ पे मार्क्स उसके नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे वो मिसिंग वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे 4, एग्रीड। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ 5, यहाँ पे 5 कर दिया, मैंने स्कोर दे दिया, यहाँ पे वैल्यू नहीं लगी हुई। जेंडर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जेंडर है लेकिन यहाँ पे स्कोरिंग नहीं हुई, ठीक है। हैपेंड हियर। ओके, आई नो। अच्छा, जेंडर है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मैंने उसकी वैल्यू लगा दी, कोई भी इनपुट कर दी, ठीक है, डन हो गया। नाउ अब स्कोरिंग है। अब आपने अपने इस, ये मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको पहले सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या करना है इसमें, ठीक है। आप अपने इस आपने अपने स्कोरिंग वगैरह को कैसे सेट करना है, देखो कि आपने एक वेरिएबल बना लिया, आपने क्लास के पूरे स्कोर बना लिए। नाउ यू वांट के हाउ दैट हाउ दिस यू नो दिस वेरिएबल आपने स्कोर करना है कि 5 से जो ऊपर हैं वो पास हैं और जो 5 से नीचे हैं वो बच्चे वो फेल हैं। तो आपने वो कैसे करना है, यू कैन नॉट डू इट ऑन 1 by 1 के जो 7 है इसको मैं पास कर देता हूँ, ये 8 है इसको मैं पास कर देता हूँ, पास हो जाएगा, ये भी पास, इसको मैं पास करता हूँ, ये 4 वाला फेल है, ये 4 वाला 3 वाला फेल है। ऐसा नहीं होगा, आपने अपने काम को आसान करना है। यू कैन डू दैट इज यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस, ठीक है। अब आपने रिकोड करना है इस इनटू अ डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। आपने इसको डिफरेंट वेरिएबल में रिकोड कर देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूँ स्कोर 1, I'm gonna mention the score 1, I'm gonna put into that न्यू वेरिएबल का नाम लिखो।
मैंने इसका न्यू वेरिएबल का नाम रखा था स्कोरिंग, पासिंग एंड फेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो जो भी आपने लिख दिया, ठीक है, डन हो गया। एंड देन यू गोइंग टू गेट फॉर द ओल्ड एंड न्यू वैल्यू। यहाँ पे आप करोगे रेंज, ठीक है। रेंज का ये करोगे 1 से लेके 0 से लेके 4 तक जो होंगे बच्चे, दे आर गोइंग टू बी पास, सॉरी, यहाँ दे आर गोइंग टू बी 1, ठीक है। आप उनको ऐड कर लोगे। उसी तरह 5 से लेके जो बच्चे जिनके स्कोर आते हैं 10 तक आते हैं, यू कैन नॉट मेंशन दैट थिंग इनटू 2। एग्रीड? डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ऐड कर लोगे। जब आप इसे कंटिन्यू करोगे ना यहाँ पे, तो आपका एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। और सेव ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस रेंज के हिसाब से करना है। तो माय फर्स्ट इज के 0 से लेकर 4 तक जो उन बच्चों के मार्क्स आए हैं, गोइंग टू असाइन देम एज अ स्कोर 1। उनको कोड 1 कर दिया। 5 से लेके 10 तक जो स्टूडेंट्स आए हैं, उनको मैंने स्कोर कर दिया है 2। दैट इज गोइंग टू बी माई पास, ठीक है। एंड देन आई एम गोना गो द कंटिन्यू थिंग, एंड ये आप कर दोगे। पेस आया होता है इसमें, ओके, ठीक है। अब आपने इसको नया स्कोर बना लिया। ठीक, मैंने आप यहाँ पे जब पेस्ट करना है ना, जब मैं इसको पेस्ट करूंगा, तो व्हाट हैपनिंग इज दिस कि मेरी सिंटेक्स फाइल में ये चीज़ ऐड हो जाएगी कि मैंने एक नया वेरिएबल एडिट किया था, और मैंने उस नए वेरिएबल को किस तरह कोड कर दिया। समझ आई मेरी बात की? तो आपके बाद के आने वाला जो भी शख्स होगा, उसे पता होगा कि आपने एक डाटा कैसे कोड किया था। ठीक हो गया। लेकिन मैंने पेस्ट के बाद मैंने उसको वो भी करना था, यू नो व्हाट दैट इज कोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, चेंज, अब आप इसको कर दोगे ओके। जब आप इसे ओके करोगे ना, तो ये एक आपकी आउटपुट फाइल सेव हो जाएगी। ये एक आउटपुट फाइल है, ठीक है। तो इस आउटपुट फाइल को आपने संभाल के रखना, आपने इसको डिलीट नहीं करना। आपका एक नया वेरिएबल आ जाएगा। ठीक हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर द स्कोर एंड फेल वेरिएबल व्यू। आपने इसकी वैल्यूज को कोड करना है। 1 वॉज द फेल, 1 वॉज आपने 1 को लेबल कर दिया फेल, एग्रीड, आपने उसको ऐड कर दिया। 2 वॉज द पास, आपने उसको ऐड कर दिया। नाउ व्हेन यू गोना डू दैट, एंड इफ यू कम टू द डेटा व्यू, आपका ये स्कोर पास और फेल में हो जाएगा, ठीक है, एग्रीड। ये पूरे का पूरा जो आपका स्कोर 1 था, ये पास फेल में कन्वर्ट हो गया है। समझ आ गई बात की यहाँ तक गाइस? ओके, गुड वन। सो यहाँ तक बात होगी। अब सिंटेक्स फाइल देखते हैं। अगर सिंटेक्स फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, आप अगर चाहो तो आप इसको डाटा को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई दूसरा शख्स है, अगर वो चाहता है कि वो एग्जीक्यूट करे द सेम टास्क को, तो वो यहाँ से इसको सेम टास्क को एग्जीक्यूट वो कर सकता है। एग्री? ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग पे। अब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन टेल यू। मैं इसको डिलीट करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दैट। मुझे ये वेरिएबल नहीं चाहिए। मैंने वो वहाँ से वेरिएबल डिलीट कर दी। सिंपल वेरिएबल को कैसे डिलीट करना है, आप अगर चाहो तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको डिलीट का बटन दबाओ, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। या आप यहाँ पे वेरिएबल व्यू में जाओ और आप वेरिएबल व्यू से डिलीट कर दो। यहाँ पे सीधा सीधा इसको क्लिक करो, यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, नाउ गोइंग टू द थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूट इनटू द कंप्यूट वेरिएबल, ठीक है, कंप्यूट वेरिएबल्स।
टारगेट वेरिएबल, मैंने नए टारगेट वेरिएबल का नाम रखा है स्कोर मीन, स्कोर टोटल स्कोर, ठीक है। आपने कभी भी जो वेरिएबल है ना उसमें स्पेस नहीं देनी, ठीक है। तो आप टोटल स्कोर करोगे, ओके डन। अब आपने टोटल स्कोर कैसे करना है, स्कोर वन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर है, स्कोर टू, वन को ऐड करो स्कोर टू के साथ, डन। एंड देन आप अगर पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो वहां पे चले जाएगा, सिंटेक्स में चले जाएगा और आपके पास डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कर दिया, ओके। आपकी सेम उसी तरह की एक आउटपुट फाइल है, उसमें नीचे आपका एक एग्जीक्यूट का आ गया कि आपने कंप्यूट किया है टोटल स्कोर को। टोटल स्कोर आपने एक नया कंप्यूट वेरिएबल किया है, स्कोर वन, स्कोर टू, जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब आप देखो आपकी डाटा फाइल में ये चीज़ आई पड़ी होगी और ये आपकी चीज़ टोटल आई पड़ी है। टोटल स्कोर 9, 11, 12, ये स्कोर वन और स्कोर टू का एडिशन है, ठीक हो गया टोटल स्कोर जो मैंने किया था। इसको मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए, डन। यू कैन डू द सेम थिंग एज वेल, आप कंप्यूट कर सकते हो वेरिएबल को एज अ, मैं इसको करता हूँ मीन स्कोर, ठीक है। मैं इसे मीन स्कोर करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। यार आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे ना कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो आपने अगर अरिथमेटिक करना है तो आपको ये सब टेस्ट, आपने लॉगरिथम निकालना है, जो भी करना है, यू कैन हैव ऑल ऑफ दोज, कहते हैं टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने मीन निकालना है तो भाई यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मीन, मीन आ जाएगा और मैं यहाँ पे मीन निकालूंगा। देखना यहाँ से मैं मीन निकालूंगा, ये इधर गया, ये देखो ये मीन आ गया, डन। अच्छा अब मीन उसने वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं, कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे मैं रखूंगा स्कोर वन पे क्लिक करूंगा और वो स्कोर वन यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इसी तरह मैं स्कोर टू पे क्लिक करूँ, रिमूव करके स्कोर टू पे रखूंगा और वो स्कोर टू यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डन। देन आई एम गोना गो द क्लिक ओके, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा दोबारा से और ये मीन स्कोर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि उस स्टूडेंट का जेंडर वन का जो मेल था उसका स्कोर 7 का स्कोर और उसका 2 स्कोर था, उसका मैंने मीन निकाला है, उसका मीन वैल्यू 4 आई, 4.5 आई, ठीक है। और इसी तरह वो सबका करता जाएगा, एग्री। तो ये आप इस तरह कंप्यूट कर सकते हो, यू कैन फाइंड द मीडियन एज वेल, यू कैन फाइंड एनीथिंग दैट यू वांट बाय कंप्यूट वेरिएबल्स, आप इसी तरह कंप्यूट कर सकते हो। या इफ यू वांट टू गो फॉर recode into the different variables, आप उसको नया वेरिएबल दे सकते हो, आप नई चीज जनरेट कर सकते हो, ओके डन हो गया। ये बेसिक ट्रिक्स थी जो कि आप बेसिक डाटा के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। अच्छा जहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई बात की, जी। नाउ गोइंग टुवर्ड्स दी डाटा एंट्रिंग। आपको डाटा एंट्रिंग तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स क्या क्या चल रहे हैं यहाँ पे और हाउ डू यू मैनेज दैट। देखो फॉर एग्जांपल ठीक है, मैं अगली चीज़ समझाता हूँ। अब आगे आपने आना है एनालाइज पे। अब आपने एनालाइज पे करना है तो आप आओगे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आओगे, ठीक है। आपको चाहिए फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, आपको चाहिए फ्रीक्वेंसीज में आपको टेबल्स चाहिए, आपको टेबल्स मिल जाएंगे। आपको मीन उनका चाहिए तो आपको मीन कंपेयर करके मिल जाएगा। आपको अगर आपने उनके टेबल्स जनरेट करने हैं तो आप उनके यहाँ से ग्राफ्स से टेबल्स जनरेट कर सकते हो या ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। डन। मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ, एक आपको चीज समझ करवा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मैंने फ्रीक्वेंसीज लेनी है, ठीक है। मुझे चाहिए स्कोर वन की फ्रीक्वेंसी और मुझे चाहिए स्कोर टू की फ्रीक्वेंसी, ओके डन। अब नाउ स्टैटिस्टिक्स में मैं देखूं, मुझे यहाँ पे परसेंटाइल, मीन, मॉड, मीडियन चाहिए। मैं अगर चाहिए होगा तो मैं ले लूंगा उनका मीन, मॉड, मीडियन। सम भी चाहिए होगा मुझे, वेरिएंस भी चाहिए होगा मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा मुझे, चाहिए होगा अगर रेंज चाहिए होगी मुझे, रेंज भी ले लूंगा मैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। क्रूटनेस एंड क्रूटोसिस चाहिए होगा वो भी मैं ले लूंगा। मुझे जो चीज़ चाहिए होगी यहाँ पे मैं ले लूंगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जो चीज़ नहीं चाहिए होगी आप उसे नहीं क्लिक करो। चार्ट्स चाहिए आपको, बार चार्ट चाहिए आपको, पाई चार्ट चाहिए आपको, हिस्टोग्राम चाहिए। बार चार्ट आपको चाहिए होगा फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है।
और आपको जो है हिस्टोग्राम चाहिए, सॉरी आपको हिस्टोग्राम चाहिए फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप बार चार्ट बना लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज के साथ आप उनको आपको चार्ट की वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में होनी चाहिए या परसेंटेज की फॉर्म में होनी चाहिए, या आप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद मुझे गिव मी सेकंड, मुझे स्कोर 2 एंड स्कोर 1, ठीक है, ओके। गिव मी सेकंड, मुझे स्कोर 2 की वैल्यू भी चेंज करनी चाहिए वहाँ पे। स्कोर 2 जो है वो न्यूमेरिक है, यहाँ पे नॉमिनल है। स्कोर 2 ये देखो नॉमिनल है, आपने इसको क्या करना है, स्केल करना है। वो मैथमेटिकल वैल्यू है जो कि एक अपना मायने रखती है। एक अगर लड़का 0 मार्क्स से लेके टेस्ट में अपीयर हो रहा है तो उसका मतलब वो फेल हो रहा है। वो फेल और पास मायने रखते हैं, तो इसलिए आपने उसको स्केल कर दिया, ठीक है। आप डाटा व्यू में जाओ, सॉरी एनालाइज में जाओ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाओ, फ्रीक्वेंसीज ले लो, ठीक है। स्कोर 1 करो, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर स्कोर 2, गो फॉर दैट। स्टैटिस्टिक्स में आपने मीन चाहिए, मॉड चाहिए, मीडियन चाहिए, सम चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, मुझे रेंज चाहिए, ये चाहिए, और दैट्स इट, ठीक है। और मुझे चार्ट्स में क्या चाहिए, मुझे बार चार्ट चाहिए, okay? या मुझे पाई चार्ट चाहिए, या I'll go for the bar chart, okay? तो कंटिन्यू दैट। फिर फॉर्मेट आप देख लो, अगर आपको सेंडिंग वेरिएबल्स वैल्यूज के लिहाज से चाहिए या डिसेंडिंग लिहाज से चाहिए, वो जिस तरह भी करना है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है, ठीक है। अब आप उसके बाद आप करोगे ओके का बटन दबाओगे, एंड देन देयर यू गो, योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब ये आपको एग्जीक्यूट हो गया। लेट मी पुट शो इट, ये सो गई है, ओके। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी टेबल। आपकी वैलिड वैल्यूज इतनी थी, आपकी उसमें मिसिंग वैल्यू स्कोर 1 में एक थी और स्कोर 2 में 2 थी। मीन आपका स्कोर 1 का 5.5 है, और उसके बाद अच्छा, और स्कोर 2 का 5.60 है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपका ये हो गया। मीन मॉड मीडियन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगी सारी यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी टेबल आपको ये मिल गया है कि 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 जिनके 4 मार्क्स आए हैं वो 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके 5 मार्क्स आए हैं उनके 5 स्टूडेंट्स हैं। टोटल आपके पास 26 फ्रीक्वेंसी हैं। ये सारा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बार चार्ट भी आपको मिल जाएगा, आपको स्कोर 2 का चार्ट भी मिल जाएगा कि 5 इज द हाईएस्ट वैल्यू, 4 इज द हाईएस्ट वैल्यू। एग्री? ये आप बेसिक्स कर सकते हो। आपने अगर इसको थोड़ा सा एडिट करना है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। आप इस चार्ट को, आप इसकी वैल्यू जिस तरह आपने इनको एडजस्ट करना है, आपने इसको यूं एडजस्ट करना है, वो फिर आप अपनी प्राइवेट ओपन करो। आपने ये खुद आप सर्च इन करोगे तो आपको ये सारी वैल्यू पता चल जाएंगी, आपने अपने चार्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, ओके। ठीक हो गया, गॉट इट। नाउ गोइंग टूवर्ड सम बेसिक्स मोर थिंग, फिर हम लोग बेसिक बेसिक्स बता रहा हूँ। देखो वो कहेगा सेव द कंटेंट्स ऑफ द आउटपुट व्यूअर टू आउटपुट टू और डॉक्यूमेंट और नॉट। मैंने कहा कि मैंने सेव नहीं करनी, मैंने सेव करनी है, मैं बाद में सेव कर लूँगा। गोना गो दैट अगेन। नाउ गोइंग फॉर सम एनालाइजिंग टेस्ट। मैंने अब टेस्ट करने हैं थोड़े से, जिसे हम कहते हैं, आपने का स्क्वायर करना है बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान आपने वेरिएबल टेस्ट करना है, ठीक है। तो I'm going for paired, I'm going for this chi-square test। तो वो मैं क्या करूँगा, वो I'm going for cross tabs, ठीक है। मैंने दो क्रॉस टैब्स को कंपेयर करना है, ठीक है। वन इज गोइंग टू बी माई कॉफी टी, एक how many people prefer coffee and how many people prefer tea. That is actually the nominal data, coffee or tea, yes or no. And the second column is going to be my ये जो आपका जेंडर होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर इनटू द कॉलम्स, ठीक है। देन गोइंग टूवर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स, आपको स्टैट्स में क्या चाहिए, आपको काई स्क्वायर टेस्ट चाहिए, ठीक है। आपने कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन चाहिए, आपको गैमा चाहिए, आपको फाई एंड कैमर्स वी चाहिए। मैं आपको बता दूंगा इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। और बाकी आपको कैपा आइटा और ये सारी चीज़ें बाद में, बहुत मुश्किल चीज़ें बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक आपको, आपने इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जैक्ट क्या वैल्यू चाहिए ये आप देख लेना खुद, इसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फॉर्मेट आपको कौन सा चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग चाहिए, ठीक है।
और देयर यू गो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओके, तो ये आपका एक क्रॉस टैब आ जाएगा, ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट रन हो जाएगा। व्हाट डज द काई स्क्वायर मीन्स? काई स्क्वायर आपका कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता कि कॉज इफेक्ट है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेल का इफेक्ट चाय के ऊपर, चाय पीने पे है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, राइट? मेल एंड फीमेल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉफी and t are independent variables and they both are qualitative variables, right? तो आप chi square लगाओगे, अब क्रॉस टैब में आपके पास क्या मिलता है? सेकंड, ये आपका ऊपर वाला रिजल्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपका निचला रिजल्ट आपको इसमें मिल जाएगा। कॉफी टी मेंशनिंग में देखो, टोटल 8 स्टूडेंट्स से 8 लोग थे जिन्होंने बताया, परसेंटेज इतनी आई है और 100% ये सारा वो उन्होंने आपको डाटा बताया हुआ है। मेल आपके पास 2 है, फीमेल आपके पास 0 है, ठीक है, ये आपने कोडिंग की हुई थी, ठीक है। उसके बाद पियर्सन का स्क्वायर रिलेशन आपका आया वैल्यू 2.667 ए, मतलब ये कि ये का स्क्वायर की एक वो है आपकी वैल्यू विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, एंड आगे ये आपकी वो पूरी पूरी वैल्यूज हैं। और उसके बाद आपकी ये पाई रो और ये कैमर्स भी टेस्ट है। इस पूरे डाटा से आपने अपना रिजल्ट कैसे ड्राइव करना, कि आपको क्या पता चल रहा है इस चीज, ठीक है, ये आपका होता है इंटरप्रिटेशन। मैं अगर अपनी डाटा फाइल को कंप्लीट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर अपनी डाटा फाइल को यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ, 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2  1 1 1 okay, and then I'll delete this thing, it's not even there, and then I'll delete 1, वो ओपन हो जाएगा, वो मेल हो जाएगा फिर बहुत ही, एंड 2 कर देते हैं इसे, और इसे 2 कर देते हैं, ओके। अब मेरा डाटा पूरा हो गया, ठीक हो गया। नाउ इफ आई रन इट अगेन, मैं आपको अब बताता हूँ क्या होगा, देखना। मैं एक दफ़ा करवा देता हूँ, फिर बाकी इधर से टेबल, सॉरी कंपेयर मीन्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स, कॉफी दिस थिंग, स्टैटिस्टिक्स में मुझे चाहिए का स्क्वायर, डन, एंड ऑड रेशियो चाहिए, डन, कैंसिल के, और डन, मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब ये नया क्रॉस टैब आया जो मैंने अभी रियल वैल्यूज में निकाला, ठीक है। देखो, मेल कितने थे? 11, 11 मेल टोटल कितने आपके पास? 15, फीमेल आपका टोटल कितनी है? 11। अब जरा गौर से सुनना, ये इंटरप्रिटेशन है, ये आपको समझ आती है तो ये ठीक है, ओके, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अच्छा, मेल आपकी वैल्यू है, मेल आपके पास टोटल है 15, फीमेल है आपके पास टोटल 11। मेल में कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो हैं 1, टी ड्रिंकर्स जो हैं वो 11 मेल्स हैं, 6 फीमेल हैं। कॉफ़ी ड्रिंकर जो है आपके पास मेल्स में 4 हैं और 5 फीमेल्स हैं। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो निकालता है पियर्सन का स्क्वायर टेस्ट। वैल्यू आपकी आती है 0.990, ये एक टेबल वैल्यू है, ठीक है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1, फॉरगेट इट अबाउट इट, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मेरे को अगर अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता। आपके पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस, 2 साइडेड टेस्ट आपके पास, आपने आप देखो तो 0.419 और ये है 0.281। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा, वो आपको जो मैंने चीज़ नहीं समझाई है, वैसे अगर मैं समझाता तो बताता आपको कि आपने सिग्निफिकेंस वैल्यू लेनी होती है 0.05, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिहाज से आप अगर 0.05 वैल्यू लेते हो, अब ये वैल्यू 0.05 से बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये कि नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस कॉफ़ी एंड टी ड्रिंकिंग एंड मेल एंड फीमेल जेंडर। अगर ये वैल्यू 0.05 से कम होती तो हम कहते हैं कि देर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन with coffee and tea drinking with male and female genders, ठीक है। Meanwhile, when you go for the phi and camels, we वो आपको बताता है यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी अ पॉजिटिव रिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन
मेल एंड फीमेल जेंडर्स विद कॉफी एंड टी ड्रिंकिंग, अगर ये सिग्निफिकेंट होता। अब ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो वी गोना डिसॉल्व दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद ये आपके दूसरे टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, ऑड्स रेशियो, कंडीशनल इंडिपेंडेंस। ये सारे की सारी चीज़ें पढ़ोगे तो चीज़ समझ आएगी क्या है ये। उन्हीं चीज़ों का एक फर्दर एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो बाद में समझ आ जाएगी तो खुद पढ़ लेना तो उसको चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। देन ये आपका एक हो गया फॉर एग्जांपल chi स्क्वायर